Good morning, everyone. Can you see my screen? Yes. Yeah. Okay. So everybody, please open your SQL Server. Let me know once it's ready with you. Okay. We'll start doing practical hands-on. So now everybody knows like how we create a database, how we create a table. So today we want to see how do we insert the data in the table. So if you see in my screen, see I have already inserted data here. So yesterday where were we? We had a orders table and there were three columns: order ID, customer ID, and the product name. Okay. So now what I have done is I've just added few values there. So what we will do together, I mean, there are how many people? There are three of us. So just let me know once you have the setup ready for SQL Server. I'll give you some sample table and we'll start creating tables and inserting data there. Okay. Okay. मैम कुछ दो स्टेप बाकी है और मेरे पास अभी फिलहाल डेस्कटॉप है और पावर नहीं है. Oh, acha, the Salon, if you see if you can make the notes because ye karna. I'm just taking the assignment. I don't know what is happening. Assignments up, but it is not few. है ना. So I have, that is why मैंने कल मैसेज में लिखा था like group में wanted to talk to somebody in Radical, but the HR team who takes care of LMS na, they were not available after 8:30. So I'll talk to them. I'll just check why things are not taking place on LMS. So what we can do is we can just do a hands-on here. So for Shweta and Chariyu, you'll have the setup, right? Yes, I have. Okay. So let's start going. So we'll do it practically here parallelly. So, okay. So let's create a new database. Wow. So you can keep yourself on unmute. That's okay. Okay. So Saloni, start telling me the what is the syntax for creating database? Anybody, what is the syntax? Create database. Database name. Okay, so we are going to create one database which will be having two tables. So one table we can have, let's say, a customer table, and another table we can have an employee table. So let's create a database which is saying create database employee customer. Okay, employee. One second. Let me make the spelling correction. Employee underscore customer. Okay, so under employee table, what we will put maybe ID, first name, last name, phone number, and then we'll have the customer table related to it. And then we'll start inserting a couple of data. Okay, so execute this. What I'll do is meanwhile, I'll go to my Excel sheet and then I'll create one table here. So you'll understand what we are trying to do as a part of assignment. Okay, so I am just putting the table name here, that is employees. Then under employees, what do we want? We want EMP ID, that is employee ID. We want the first name of the employee. Then we'll be adding the last name is okay. Let's forget about it. We can simply add the phone underscore phone number. Then after phone number, we can quickly go and add the city ID. Okay, so this should be a part of your employee table. Now let's go and create the table. Rather saying customer, let's have cities. So first ID under city would be ID because we need to link this both table. That is why one ID should be common. Then we can have the name of the city. So let's make it clear. It should be city name. And then we can have maybe the zip code of the city, something like this. So what will happen gradually when we are creating both of this table under the database, we can link both employees table and the cities table with the joining key, that will be the city ID. So this is how you join the table, and then we will see how do we work with multiple joins. Okay, so again come back to your databases. Let's make it employee and their cities database. So selected and then executed. Okay, I need to connect my database. Okay, so it is created. Everybody do it in parallel with me. Done. The creation of the table is done. Okay, now somebody tell me what is the syntax for creating a table. Create table name.
Okay, so what will be the first table if you go into the Excel? The first table should be your employees table. Let's go and create table name. After that, what? This is not the end. What is next step? Shweta? We have to specify columns and values. Exactly. So I'll just copy paste all three Columns of them. data type. Correct. And followed with a constraint also. Now constraints are very important, right? You need to highlight which is the primary key, foreign key. Okay. So employee ID, what will be the data type? Quickly, any one of you. Integer. Okay. And and this can be a primary key, right? Because what is a primary key? A primary key is something which is unique, which is not a duplicate value basically. So this can be a primary key followed with a semicolon. Now first name would be what? It can be a varchar. Okay, so see, there is a difference between a varchar and a char. So the full form of varchar is variable character and full form of char is character. So depends what you want to use. Basically, varchar can have a variable string limit and character will have a fixed string limit. So what I'm trying to say you here is when I'm talking about varchar and char string limit. So basically, when you give this parenthesis, open bracket, close bracket after your data type, you can specify the length here. So what is the meaning of the length? That means you want somebody to enter characters or letters which are not exceeding more than 255. Even you can make it 20, you can make it 50. So there is a limit, right? So this is very important. You specify the limit when you're working with characters, let's say your float values, let's say your string values, varchar and char. But when you are with integer, I mean, it is not a compulsion to satisfy or specify some size. But yes, even if you want to, you can put the sizes. But for integer, the tool understands you can take the integer, but it is mainly what we say, it is like a compulsion when you're working with varchar string related value. It's always good to have a limitation here, because what will happen tomorrow, somebody is coming and giving a very big name. So the database should understand, okay, we have a limitation and that is how we want to go. In case if you're giving a data type and if you're not giving a limit here, and if you keep on adding value, let's say Ruchika Rathi, this is the first name followed with the last name. So by default, the varchar will take only 5 characters. And if you're trying to add a name which is more than 5 characters, the tool will keep giving you errors. It will keep on giving you like messages. So it will not give you the exact messages that please enter the size limit. So at that time, what you can do is you can copy paste that error. You can Google searches, because all the errors are available on the Google. You just need to search it in the right way. Okay. So just to avoid the errors, the best practice is just try to give some limit here. So I'm just giving a limit 50 separated with a comma, but before a comma, again, you can just mention a constraint, null or not null. Okay. Now phone number. So phone number, again, it can be, let's say phone number. Okay, so we can add a phone number. So phone number, sometimes people do take it varchar. We can also take it as a big int. So big int is usually used when you're working with big numbers. So again, for integer, we are not specifying anything. So phone number, we can keep it null if required, followed with a semicolon. And then we have the city ID. Again, it's ID. So ID would be your integer type. And we don't want the ID to be null, because they are what? They are unique characters which will help us to identify the data. Okay, now let me see what errors we have. Must include a data type. Okay. Okay, so I've given a comma here by mistake. Employee ID. The definition of employee ID must include a data type. Okay, so it is asking data type here. Anyway, it is okay. Okay, now what is the error here? Null. So let me just check. Begin. Okay. Not null. Okay, so by mistake I've added multiple commas there. Please check for yourself. Okay, just write the syntax. Let me know when everybody is ready. We can execute this. So we are creating an employee table where we have the employee ID. Okay, we have the first name. You can also add the last name if needed. Okay, let's do it. Let's add it just so that we can have more data in the columns. So last name, again, it will be a varchar. You can again make it like, let's say 50. And we don't want the constraint as null. So we are mentioning it as not null.
Phone number, you can also put your manager ID. We can have department ID, salary. We can have the hire date of the employee. There are multiple things. Okay. So this is how you can create it. Okay, everybody's done. Shall we execute this? Okay, so do it in parallel with me. So now I'm executing it. Okay, how do you check it whether this is created or not? Somebody tell me, how do you check it whether the table is created or not in the database? What is the syntax? The handy syntax which we should have always. Select star from the table. Select star from what? From the employees table. Correct. So I'm putting the employees table here, and we are doing a control C select. You can do multiple select at a time, but when you are creating table, you just need to have only one statement executed. Okay, so now the table is created, and what we need to do is we need to make sure where the employees table is created, whether it is created under the employees database or it is running somewhere. So let's do a quick check. So okay, let me do a refresh here also. Now let's go and see the employees and cities. Okay, so it is not created here. So what we can do, just because I have multiple databases, what I can do is I can say use employee cities as a database. Okay, now see this, I'm executing this. So that means I'm giving a command to the tool that employees and whatever data I'm firing, it should go under the employee cities. Now what has happened is I've already created this table. If I recreate it, the tool will give me error that the table already exists. So there are two ways of recreating it. Either you can give a different name to it, employee table 1, 2, 3, or the best way is drop the table. So what is the command to drop? Drop table name. So this is the drop table command. I'm just writing it. So what will happen with the help of drop table? I'll give you a simple example. See, हम लोग basically बोलते हैं ना अभी engineering के phase में तो ऐसे होते हैं. Like somebody who is having some backlog. Second year में he have 2 backlogs. He's not able to clear it. तो क्या होगा? वो third year में entry नहीं कर पाएगा. So even if some teachers from third year are coming and picking up the name, okay, roll number 101, roll number 102. So somebody will prompt up and say 101, 102, they are dropped out. So dropped out means what? They have failed in something. That is why they are not carry forward. मतलब वो college से ही drop हो गए. So उसका meaning ये होता है, even if you call their name, they won't be available in the entire college. So यहाँ पे भी drop का meaning वही होता है. अगर आपने drop कर दिया, तो वो table पूरा चला जाएगा, उसका structure चला जाएगा, उसका data चला जाएगा. Now let's see how. So for example, let's go and search the employee table where it got created. So I think masters में होगा by default because हमने use वाला चीज क्रिएट नहीं किया था. So there are multiple employees. So this is the employee, and let's go and check the data. So under columns, so can you see first name? Okay, this is different here. एक और employee table कहाँ create हुआ है? Let me go and check. उसी के नीचे था I guess employees. था क्या? हाँ, ये एक बड़ा गड़बड़ हो जाता है. हाँ, इसी के नीचे है employee. So we have एक employee ID, first name, last name, phone number, city ID. Okay, so this is created here. अभी हमें ये नहीं चाहिए. So अब हर किसी को पता है कि कैसे करते हैं, use करते हैं. Okay, now one more thing, if you see, देखो यहाँ पे key जैसा function आ गया, key जैसे icon आ गया basically. Why? Because employee ID is now known as the primary key of the table. मतलब वो head of the family है. So अगर किसी को भी अगर employee table को identification करवाना है, represent करवाना है, तो कौन सबसे आगे रहेगा? Employee ID. तो अभी ये employee ID cities table में जाके as a foreign key reflect करेगा. We'll see that how. So just look at the identification. This is the key. That means he is the head of the family. और ये आपका टेबल स्ट्रक्चर है जिसमें आप कॉलम्स एंड ऑल इंसर्ट कर सकते हो. सो अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस इज नॉट व्हाट अ पावर बीआई डेवलपर वुड बी डूइंग. ये सब आपको करके मिलेगा, बट जस्ट इसका नॉलेज होना चाहिए. दैट इज वेयर वी आर डूइंग इन डेप्थ. ओके, नाउ अभी सीक्वल में ऐसा तो ऑप्शन है नहीं कि आपने यहाँ से ड्रैग किया और इसको हमारे एम्प्लॉय सिटीज के डेटाबेस के नीचे जाके डाल दिया. नो, एवरीथिंग गोज विद द क्वेरी. सो व्हाट वी कैन डू इज, okay, now use this because it does not have permission. क्यों नहीं drop कर सकते? What? Cannot drop this table. Let me see there. One second. Cannot drop because it does not exist. It do not have permission. ये trial में यही issue होता है. I mean, we have the permission. अभी create किया, but you cannot drop it.
I don't know क्यों ऐसे हो रहा है. Let's see again. Because it does not exist or do not have permission. मैंने drop command execute नहीं किया ना. Let's see it once again. So because if you execute the drop command, na, it will entirely go from your databases. You won't be able to find it. Okay, it is already there. You don't have हमने ऊपर यूज एम्प्लॉय सिटीज किया, उसके बाद ड्रॉप कर रहे हैं, उसकी वजह से. हाँ, इट इज ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. ये तो हम सिर्फ कमांड दे रहे हैं कि हमने जो नहीं, देखो यूज क्या कर रहा है. यूज इज जस्ट सेइंग कि यूज के बाद में जो भी मैं डेटा क्रिएट करूंगी, इंसर्ट क्रिएशन, वो हमेशा इसी डेटाबेस के अंदर होना चाहिए. यूज का काम ये है. जैसे आपने किसी को बोला घर में 2 कबर्ड है, यू आर टेलिंग योर चिल्ड्रन यू शुड बी यूजिंग कबर्ड नंबर 1, 2 को ओपन ही नहीं करना है. सो आप उसको मतलब एक मैंडेटरी कंडीशन दे रहे हो. सो दैट इज व्हाट वी आर गिविंग हियर. बट ड्रॉप इज नॉट दैट. और ड्रॉप तो मैं एम्प्लॉय को ही कर रही हूँ. कुछ वियर्ड काम कर रहा है, ये नहीं दिखा रहा है. ठीक है. सो लेट्स नॉट गो मोर इनटू दिस. फॉर एग्जांपल जस्ट अंडरस्टैंड कि हमारा एम्प्लॉयज ना एम्प्लॉय सिटी के अंदर ही क्रिएट हुआ है, बिकॉज एनीवे वी आर एबल टू सी इट. Our main motto is to understand how we are doing it next steps. ठीक है. So ये create हो गया. Let's forget about the drop. Okay. So this is created. Also we did a select statement. So select के साथ में हमको अरे ऑब्जेक्ट ही अवेलेबल नहीं है बोल रहे हैं. What is this? Wait. ठीक है. Let's make it employees detail. Spelling भी गलत हो गया ना. Employees underscore details. Let's create this. और मैं बोल देती हूँ कि ठीक है, ये यूज हो गया. Now I'm saying employees details create करो. कहाँ? Under the employee city. So let's refresh it once and let's go to employee cities. Okay. Now let me refresh on this employee cities and let's go to tables. Okay, so you have the details here. Now next step is, यहाँ पे spelling mistake है तो यही spelling उठाना पड़ेगा. Employees details. Okay. अब क्या problem है इसको? Object does not apply. It's already there. Okay, now it is taking. Okay, so let's execute. यहाँ तक clear है? ठीक है. Now what we are doing at the same time, we are creating one more table under the same database. So what is the table name? It is cities. So same syntax. I'm just copy pasting this. So create. Now what we are doing, I want the table name to be cities. So what do we have under city? We have city ID. So we are keeping it as it is. After city ID, we have the city name. So city ID के साथ में what we are going to do, we are going to put a primary key constraint here. That this okay, this is not a primary key. Sorry, ये तो foreign key हो जाएगा ना. Okay, so city and then we have the city underscore name. So city underscore name again, it can be a varchar. And we can have, let's say 35 this time, and it should be or not null. Then we have the zip underscore code. So zip code again, it will be integer values, na? हाँ, okay. So we are not specifying anything here. Okay, तो यहाँ तक create हो गया है. Now what we are going to do is, just because we want to link both of this table, कौन से दोनों tables? We want to link the employee details and the city details. Okay, so you can see there is a common key between both of them, city ID and city ID. Also we can put, so we can do it by 2 ways. अगर हमने employee ID city ID में दे दिया तो हम employee ID का reference जो employee details में उसका reference हम लोग cities में दे सकते हैं. ठीक है. Even you can go with the city ID also. Both are one and the same. So let's say हम लोगों को employee ID भी इसमें डालना है. So we'll just put a employee ID, but we won't make it a primary key. I'll just put employee ID integer and it should be not null. Okay, now how do you reference it? ताकि वो फॉरेन की ऐड करे. अभी हमारा नेक्स्ट गोल क्या है? अभी ये प्राइमरी की तो ऐड कर रहा है किसके अंदर? एम्प्लॉयज डिटेल्स में, जो आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है. अभी हमारा नेक्स्ट गोल क्या है? ये जो सिटी आईडी एम्प्लॉय डिटेल्स का है वो फॉरेन की ऐड करना चाहिए सिटीज के टेबल में. सो हाउ डू यू राइट इट? सो द सिंटैक्स वुड बी, okay, city ID followed with a data type and followed with a constraint. तो वो constraint कैसे लिखेंगे हम लोग? What constraint we want? Instead of primary key constraint, we want to make it a foreign key. So same thing, city ID, that is the column name, data type and the constraint. और constraint के आगे एक और चीज हम लोग लिखते हैं, references. मतलब वो कहाँ से रेफर होके आ रहा है वो मेंशन करना पड़ेगा. References, okay, references to cities. तो ये अभी cities का टेबल देना पड़ेगा हमें. And then cities का city ID.
सो ये ब्रैकेट का नहीं दिया तो भी चलेगा, बट देन लेट्स सी हाउ द टूल वर्क्स नाउ। एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऐसा है, जैसे अगर आपने अभी SQL सर्वर कर रहे हो, आप ओरेकल में करते हो, ओके, या फिर आप कोई और डेटाबेस लेते हो, तो थोड़ा हल्का फुल्का सिंटैक्स यहाँ वहां चेंज होगा, बट ओवरऑल द मीनिंग ऑफ द व्हाट यू कैन से द लॉजिकल सेंस एंड द रिजल्ट वुड बी सेम। हल्का सा सिंटैक्स आगे पीछे होगा, बट देन हाँ हाँ बोलो। और रेफरेंस में हमें एम्प्लॉय डिटेल्स लेना पड़ेगा ना? ओह सॉरी, यस, एम्प्लॉय डिटेल्स देना पड़ेगा। अभी वो स्पेलिंग गलत है, तो लेट मी राइट द स्पेलिंग। हाँ ठीक है, दैट मीन्स आप लोगों को समझ रहा है, राइट, यू एबल टू अंडरस्टैंड, है ना कैसे हो रहा है वो। सो बेसिकली अभी हम लोग क्या कनेक्शन कर रहे हैं, वी आर लिंकिंग दिस विद दिस। सो लेट मी मेक इट अ कलर, है ना। तो यूजुअली डेटाबेस में क्या होगा, इन दोनों के बीच में एक से लाइन आ जाएगा। आई विल टेल यू हाउ, कैसे होता है वो। सो आप लोग जाके एक बार ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो। एनीवेज हमारे पास कहाँ गए वो शेप्स, पावर BI में हमको इसी चीजों को आगे पढ़ना है। सो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब यहाँ से यहाँ रेफरेंस कर रहा है वो, ठीक है। तो अल्टीमेटली इन दोनों में लिंकिंग हो गया, और ये रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं हम लोग, जॉइन कंडीशन, ठीक है। और इसी को हम लोग आगे लेके जाएंगे और आगे जाके समझेंगे कि रिलेशन कैसा है। तो देयर आर मेनी मल्टीपल वेज ऑफ हैविंग अ रिलेशन। एक होता है वन टू मेनी, ओके, एक होता है मेनी टू मेनी, देन नेक्स्ट होता है मेनी टू वन, एंड द लास्ट इज वन टू वन। आई विल टेल यू ये कैसे होता है, पहले मुझे एक बार एग्जीक्यूट कर लेने दो डेटा। वन टू वन, ये कौन सा फॉर्मेट ले रहा है, वन टू वन, format cells, one second, just make it general number. ठीक है, it is not taking, ठीक है, देखते हैं बाद में इसको। Now what is the next step? Let's come and execute this। हाँ, अब ये कहाँ बनना चाहिए, वैसे हमने एक्चुअली दे तो दिया इसको, यूज मी तो किया है, बट एक बार और रेफर कर देते सो दैट इट डज नॉट रन एनीवेयर। सो वेयर इज दैट, यूज सिटीज, एंड लेट्स कम डाउन, ओके, अगेन आई विल execute this, and then let's execute this table, okay. So the table is executed clearly. Now let's go and fire the query which is saying select star from your cities. So this is my city. If you do a double click here ना यहाँ पे आपके कीपैड से, तो select हो जाएगा। यहाँ पे भी आप double click करोगे select हो जाएगा। So now I'm executing, ये क्या error है, invalid object, it's already there। ठीक है, now let's go and search it here once again, refresh it। आपको एंटरप्राइज वर्जन्स में, पेड वर्जन्स में ऐसा इश्यू नहीं आएगा। विद ट्रायल दे हैव देयर कुछ चीजें होती है जो कभी कभी वियर्ड एक्ट करती है, बट देन या दैट्स ओके। ओके, अभी दिख रहे हैं दोनों टेबल्स, दिख रहे हैं आप लोगों को? दिख रहा है यहाँ पे, देखो FK बन के आ गया। इवन देयर इज चेंज इन द साइन, फॉरेन की का साइन देखो कैसे होता है, द रिवर्स की, ओके, एंड PK का साइन देखो उसके अपोजिट डायरेक्शन। समझ आया यहाँ तक सबको कैसे हो रहा है? यस मैम। क्लियर एवरीबडी? ओके, नाउ व्हाट वी विल डू नेक्स्ट स्टेप इज, तो अल्टीमेटली अभी क्या हो गया, हमारा इतना कनेक्शन रेडी हो गया, टू टेबल्स आर देयर एंड वी हैव लिंक्ड देम टुगेदर। नाउ कमिंग टू वन टू मेनी, मेनी टू मेनी, मेनी टू वन, और ये एक है वन टू वन। तो मैं इसको एंटर नहीं करती बिकॉज इट इज टेकिंग अ न्यूमेरिकल फॉर्मेट। वन टू मेनी बेसिकली कैसे होता है, अभी आप रिलेशनशिप समझो, हमने ज्वाइन तो कर दिया है, बट ये ज्वाइन करने के मल्टीपल तरीके हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कार्डिनलिटी। सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस 4 टाइप्स? कार्डिनलिटी, ओके। CAR, मैं यहाँ पे लिखती हूँ स्पेलिंग, अगेन दिस विल गो आउट, CARDINALITY। सो अगेन कार्डिनलिटी, अगेन हम लोगों को पावर BI में यूज होगा, but just I'm putting it there।
ओके सो अभी क्या हो रहा है, जैसे अभी इन दोनों का लिंकिंग तो हो गया, अब ये लिंकिंग के 4 तरीके हैं, वन टू मेनी, मेनी टू मेनी, मेनी टू वन टू वन। इसका मीनिंग क्या होता है, जैसे अगर आप देखोगे सिटीज के आईडी में जैसे भी डेटा है, फॉर एग्जांपल सिटी 1 2 3 4 5, देयर आर 5 सिटीज। अब मेरे पास कितने सिटीज है, मैं यहाँ पे लिख के रखती हूँ नंबर्स 1 2 3 4 5, ओके। एंड हियर इन द सिटीज टेबल आई हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अभी क्या हो रहा है, बेसिकली सिटीज के टेबल में देर आर n नंबर ऑफ सिटीज, 1 to 10 इज व्हाट, हमने हर एक सिटी को नाम नंबर दे दिया। फॉर एग्जाम्पल मुंबई इज 1, महाराष्ट्र में जैसे होता है ना वो व्हीकल्स में नंबर 01, पुणे इज फॉर एग्जाम्पल 02, नागपुर इज 03, समथिंग लाइक दैट। तो ये हमने एक आईडी दे दिया सिटी को। तो अभी रेफरेंस क्या हो रहा है, सिटी आईडी जो प्राइमरी की एम्प्लॉयज टेबल में है वो सिटी टेबल में जाके एज अ फॉरेन की एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां तक तो हम लोग क्लियर है। अभी नेक्स्ट स्टेप अगर आप देखोगे, एक एम्प्लॉय टेबल में देयर आर फ्यू एम्प्लॉयज, वो कुछ तो 5 सिटी में रिसाइड करते हैं, दे बिलोंग टू सम 5 सिटीज, सिटी 1 2 3 4 5। बट अगर आप ओरिजिनल सिटी टेबल देखोगे तो उसमें कितने सिटीज है, 1 to 10। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, ज्यादा सिटीज कहाँ पे है, सिटीज के अंदर। सो दिस रिलेशन विल बी 1 to many, बिकॉज इसके जो इंस्टेंसेस है, इसके कितने इंस्टेंस है, 5। जो 5 इंस्टेंसेस एम्प्लॉय टेबल के सिटीज के हैं, वो 5 तो यहाँ पे आपको मिल ही रहे हैं, बट वो 5 के अलावा देर आर मोर एंट्रीज ऑफ सिटीज। सो दैट मीन्स टेक्निकल लैंग्वेज में इसको ऐसे बोलते हैं कि सिटी आईडी जो एम्प्लॉय को बिलोंग कर रही है उसके मल्टीपल इंस्टेंसेस कहाँ पे पड़े हुए हैं, सिटीज के अंदर। ओके, दैट इज व्हाई द रिलेशन विल बी 1 to many, बिकॉज यहाँ पे डेटा सिटीज का कम है बट इसके इंस्टेंसेस ये टेबल में ज्यादा है। सो रिलेशन इज 1 to many। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे होता था, जैसे सपोज अगर इसमें मेरे पास में सिर्फ 5 सिटीज है एंड हियर वी हैव द एंटिटीज दिस वे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5 सिटीज है, यहाँ पे 10 है, तो इसका रिलेशनशिप उल्टा हो जाएगा। सो देन इट वुड बी मेनी टू वन। ओके, सो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा m, यहाँ पे आ जाएगा 1। सो मेनी टू वन। अब मेनी टू मेनी कब होगा, जब दोनों में इक्वल नंबर ऑफ इंस्टेंसेस है। Okay, when they have equal number of instances, then the relationship would be known many to many, दोनों में डेटा सेम है। Okay, and then reverse 1 to 1 जनरली हम लोग फॉलो नहीं करते। 1 to 1 मीन्स यहाँ पे जितने इंस्टेंसेस है यहाँ पे भी ऑलमोस्ट, मेनी टू मेनी 1 to 1 ऑलमोस्ट सेम ही काम करता है। सो इंस्टेंसेस वुड बी सेम। सो जनरली ये कब होगा, व्हेन वी हैव अ फैक्ट टेबल। तो फैक्ट टेबल, जैसे मैंने कल बोला था मास्टर टेबल होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फैक्ट टेबल। और ये जो मल्टीपल टेबल्स आसपास में होते हैं, एम्प्लॉय टेबल, अकाउंट टेबल, फॉर एग्जांपल किसी का एज रिलेटेड डेटा है, हायरिंग डेट रिलेटेड टेबल, सैलरी टेबल। सो ये सब टेबल्स को जिसका डेटा आपका मास्टर टेबल में जाता है, उन टेबल्स को हम लोग बोलते हैं डायमेंशन टेबल। डिमेंशन टेबल वन एंड द सेम। तो ये आपके डायमेंशन टेबल एक्ट करेंगे, ये आपका फैक्ट टेबल, और लेट्स से इट विल एक्ट एज अ मास्टर टेबल। इसीलिए हर किसी के जो अलग अलग टेबल्स हैं, एम्प्लॉय टेबल, अकाउंट्स टेबल, सैलरी टेबल, तो ये मल्टीपल डायमेंशन टेबल्स अपने प्राइमरी की कहाँ पे लेके आएंगे, इस फैक्ट टेबल में लेके आएंगे। सो दैट इज व्हाई दिस विल बी नोन एज अ मास्टर टेबल, जहाँ पे डेटा ज्यादा होगा, और ये जो बाकी छोटे छोटे टेबल्स है दे विल बी नोन एज अ डिमेंशन टेबल। सो देन इसको हम लोग और आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट सेशन में, बट फॉर नाउ जस्ट कीप इन माइंड कि कैसे कार्डिनलिटी होता है और जॉइंट्स लगाने के बाद में कैसे रिलेशनशिप सेट होता है। क्लियर टिलियर, कोई डाउट एक्सप्लेन करना है वापस, लेट मी नो। क्लियर है? ओके, नाउ लेट्स गो एंड okay fine good, so let's go and understand how to insert। अभी हमने कल एक टेबल क्रिएट किया, परसों भी एक किया था, आज हमने 2 टेबल क्रिएट कर दिए, उसमें जॉइंट कंडीशन लगा दिया विद द हेल्प ऑफ योर प्राइमरी की, फॉरेन की। ठीक है, हमने कार्डिनलिटी के टाइप्स भी देख लिए। सो बिफोर गोइंग इनटू इंसर्ट, लेट मी जस्ट हाईलाइट इट। ये दोनों जो है ना, ये 1 to 1 जो है, 1 to 1 and 1 to many, we usually avoid it। 9 और 10 केसेस में SQL हो, डेटाबेसेस हो, आपका पावर BI, टैबल्यू, कोई भी टूल क्यों ना हो जाए, हम ये रिलेशनशिप अवॉइड करते हैं, बिकॉज ये रिलेशनशिप से क्या होता है, डेटा आपका डुप्लीकेट होने के चांसेस है। व्हेन यू रिट्राइव द डेटा फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल एंड सिटीज टेबल, अगर हम जब क्वेरी फायर करके दोनों का डेटा निकालते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल किसी को जानना है कि ऐसे एम्प्लॉयज जो कि सिटी नंबर 1 और 10 में है, उसका सिटी नेम लेके आओ। सो अल्टीमेटली हम लोग डेटा कहाँ से निकाल रहे हैं, एम्प्लॉय आईडी ऐसे हो जिसका सिटी 1 और 10 के बीच में लाई करता है। सो अल्टीमेटली हमको सिटी नेम भी चाहिए, जिप कोड भी चाहिए, एम्प्लॉय नेम भी चाहिए, फर्स्ट नेम भी चाहिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों टेबल में से मिला के कुछ डेटा बाहर लेके आ रहे हैं।
करेक्ट। तो इन केसेस में हमको क्या लगेगा, जॉइंट्स लगेगा। जब तक दोनों टेबल में जॉइंट्स ही नहीं है, आप दोनों का मिलकर डेटा निकाल नहीं सकते हो। हाँ, बट इफ यू वांट टू गेट द डेटा फ्रॉम एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम एंड द फोन नंबर, देन यू डोंट नीड द हेल्प ऑफ सिटीज कॉलम, वो अकेला अपना काम करेगा। बट आपको जब कॉम्बिनेशन टेबल में से डेटा चाहिए, सो यू नीड टू मेक द जॉइंट। ओके, इन दैट केसेस आपको कार्डिनलिटी भी लगेगा, ठीक है। बट 1 to 1 और many to many वी अवॉइडेड, बिकॉज इन केसेस में हम जब डेटा रिट्राइव करते हैं ना मल्टीपल टेबल से, तो चांसेस आर देयर, हाईली चांसेस ये है कि डेटा डुप्लीकेट हो जाता है, डेटा रिपीटेटिव टाइम आ जाता है। कभी कभी डेटा इतने टाइम्स मल्टीप्लाई होता है कि एक ही यूजर के हमको 10-10 एंट्री मिलते हैं, जबकि उसके एंट्री 2 ही होते हैं। So just to avoid this thing, we do not make 1 to many, many to many. But there are 1% of chances जब हमको डेटा 1 to 1, many to many के थ्रू लेना है, so we do make it, but then we avoid it. That is a general practice. Okay, now let's go back to your SQL and let's write the insert statement. So insert statement क्या है? Insert into table. पता है किसी को? बोलो। इंसर्ट इनटू टेबल और आपका टेबल नेम, ठीक है। सो आपका टेबल नेम क्या है? पहले हम लोग इंसर्ट करेंगे एम्प्लॉय डिटेल्स में, क्या होगा उसके बाद सिंटैक्स? बोलो। वैल्यूज। हाँ, पहले वैल्यूज नहीं होगा, पहले तो कॉलम्स रहेंगे ना। ओके, वैल्यूज भी ठीक है, आई मीन यू कैन ऑल्सो ओमिट दिस, ठीक है, वैल्यूज है। सो इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय डिटेल्स। अभी एम्प्लॉय डिटेल्स में हमें जाके क्या चेक करना पड़ेगा कि कौन से कॉलम्स है हमारे पास एम्प्लॉय डिटेल्स में। सो वी हैव ऑल ऑफ दिस। सो द शॉर्टकट इज, इसको कॉपी कर लो, कम डाउन एंड जस्ट पेस्ट देम ऑल ऑफ देम हियर, ठीक है। सो देयर आर मल्टीपल वेज, आप लोग इंसर्ट करने के भी मल्टीपल तरीके होते हैं। सो आई विल टेल यू वन ऑफ देम। सो ये सब डेटाबेस वाले काम करते हैं, बट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है एज अ बीआई एनालिस्ट? दिस इज द फर्स्ट स्टेप, लर्निंग डेटाबेसेस। और डेटाबेस में से सीक्वल लैंग्वेज आपको कैसे हेल्प करता है डेटा रिट्राइव करने के लिए। बिकॉज अब जब रिपोर्टिंग टूल्स पे टैबल्यू, क्लिकव्यू, पावर बीआई पे आप जब डेटा क्लाइंट को दिखाएंगे, आपको हमेशा डेटाबेस में आके डेटा चेक करना पड़ता है कि डेटा करेक्ट है, आर वी गिविंग द राइट आउटपुट। अब मैं मैन्युफैक्चरिंग के डोमेन में मैं काम कर रही हूँ, आई नो मेरा डेली सेल्स 15,000 रुपीज तक होता है। ओके, अब आप दिखा रहे हो 21,000 रुपीज। जस्ट बाय लुकिंग एट द डैशबोर्ड आई कैन अंडरस्टैंड कि आपने प्रेजेंटेशन गलत किया है, राइट। तो ये सब फिगर्स जो होता है ना, जो जिन लोगों का जो बिजनेस होता है, या फिर लेट्स से भी आपके घर में भी, जैसे आपको पता है महीने में आपके घर में सिर्फ 2 गेस्ट आते हैं, ऐसा कभी हुआ नहीं है लास्ट 6 months में दैट एवरीबडी यू हैव एवरी डे यू हैव अ न्यू गेस्ट विजिटिंग योर प्लेस। तो आपको भी ऑन एवरेज तो पता है ना कि महीने में मेरे घर में in a month's time I have 2 to 3 people who visit my place. If I am coming and showcasing, okay, सलोनी के घर पे दिन में 10 लोग आ रहे हैं, so you will bombard on me कि ये तो मेरा डेटा है ही नहीं, ऐसे तो कभी होता ही नहीं है। So similarly clients का ऐसे ही रिफ्लेक्शन होता है, उसके लिए हमको डेटाबेस में आके सीक्वल का हेल्प लेके जाके चेक करना पड़ता है कि जो हम सामने दिखा रहे हैं वो पीछे मैच हो रहा है कि नहीं। जस्ट लाइक यू डू अ टेस्ट ड्राइव ऑफ योर बाइक। अभी बहुत लोग देखो, आप सपोज टोयोटा के शोरूम में जाते हैं, यू वांट टू बाय अ बाइक और अ कार, डू दे ऑलवेज टेल यू टू डू अ टेस्ट ड्राइव? क्यों टेस्ट ड्राइव कराते हैं? जस्ट टू मेक यू फेमिलियर कि ये ऐसा टूल है, ये ऐसा व्हीकल है, ऐसा चलता है, इसका माइलेज इतना है, इसका इंजन ऐसा है। सो इवन दे आर मेकिंग यू टू डू अ टेस्ट ड्राइव बिफोर दे ऑल्सो आस्क यू टू परचेस इट। परचेसिंग इज सेकेंडरी, और वो टेस्ट ड्राइव कराने के पहले उन लोगों ने भी मल्टीपल टाइम उसका टेस्ट ड्राइव किया होगा, करेक्ट है ना, कि कैसे पूरा उनका इंजन चलता है, कहीं इशू तो नहीं है, कॉस्मेटिक चेंजेस को कुछ करना है क्या। तो अल्टीमेटली वो जो इंजन नीचे बना हुआ है ना एक व्हीकल का, देयर आर लाइक शॉकअप्स होते हैं, ब्रेक्स है, वायरिंग है, देयर आर मल्टीपल थिंग, पेट्रोल टैंक, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या होगी, इसको हम बोलते हैं डेटाबेसेस। और अगर वो व्हीकल के ऊपर आपको सीट डालना है, सीट पे ब्यूटीफुल कवर डालना है, फिर आप एक्सीलेटर पे आजकल वो करते हैं ना वॉइस, दे पुट समथिंग डिफरेंट, लाइक वो हैंडल्स होते हैं, मिरर्स का कस्टमाइजेशन है, तो जो ऊपर का लुक एंड फील है ना उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग टूल, एक सिंपल लैंग्वेज में। अंदर का जो भी चल रहा है ना, इंजन है, आप पेट्रोल डाल रहे हो, पेट्रोल पंप पे जाके एग्जैक्टली वो पेट्रोल टैंक में ही क्यों जाता है, बिकॉज उसका मैकेनिज्म वैसे करके रखा है। सो ऑल दिस इंटरनल थिंग्स आर नथिंग बट योर सीक्वल एंड डेटाबेसेस। और ऊपर का जो लुक एंड फील है ना कि आप उसको ब्यूटीफुल दिखा रहे हो, ऐसा प्रेजेंटेशन है, ऐसा डेटा आ रहा है, सो दैट इज नथिंग बट इट्स योर पावर बीआई या फिर टैबल्यू। तो वो चीजें ना प्रैक्टिस से आ जाती है। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, जब तक आपको पता ही नहीं है कि मतलब यार इंजन को कहाँ लगाना है, टैंकर कहाँ पे जाएगा, ब्रेक कब लगना चाहिए, ये मैकेनिज्म क्लियर नहीं है, तो फिर वो लुक एंड फील का कोई पर्पज ही नहीं होता है ना। बट देन अगेन फॉर एट योर लेवल, फ्रेशर लेवल पे, नोइंग डेटाबेसेस, थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग एक्सेल बेसिक्स, इट इज मोर देन सफिशिएंट। बाकी तो आप लोगों को लाइक ट्रेनिंग्स होता ही अंदर,
ओके ठीक है, अगेन कमिंग बैक टू, मैं एक पावर बीआई का रिपोर्ट ओपन करके आपको दिखा रही हूँ कि कैसे बनता है एक्चुअली इसी कंटेक्स्ट में. नाउ मीनवाइल लेट्स गो एंड ऐड द डेटा. ठीक है, सो क्या ऐड करते हैं, एंड हु इज डूइंग पैरेलली, कोई कर रहा है क्या? सो देन आई कैन एट द एंड ऑफ द सेशन आई कैन जस्ट चेक हाउ यू हैव इंसर्टेड. ठीक है, सो मैंने फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय नेम 1 ही डाला यहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल द नेम ऑफ द एम्प्लॉयज जेम्स. ऑलवेज मेक इट अ बेस्ट प्रैक्टिस कि आप उसको कैप्स लॉक में लिखते हो. एंड देन द सरनेम स्मिथ, देन वी हैव द फोन नंबर. सो फोन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, एंड देन इट इज सेइंग आई वांट टू हैव अ सिटी. सो फॉर एग्जाम्पल मैंने सिटी को क्या किया, नल हमने कंस्ट्रेंट लगाया कि वहां पे we should have not null. So not null means we cannot keep it blank. You'll have to add something in the city. So if the city code is, let's say 101. Okay, and let's close the bracket. Okay, now let's go and insert this. Okay, so one row is inserted. Now how do we go and check it? Let's go and fire the query under the employees detail. दिख रहा है? Clear till here everybody? Any issues? Can we add multiple rows at the Yes. same time? Yes, exactly. That is the next step. Okay. नाउ अभी एक और चीज ध्यान रखना, जैसे देखो मैंने यहाँ पे 1 के लिए इन्वर्टेड कोटेशंस नहीं दिया है, ये भी बाकी टूल्स में वैरी करते हैं. जैसे देखो अभी ये भी इन्वर्टेड कोटेशंस ले रहा है, इट इज नॉट गिविंग इट एज रॉन्ग. Okay, so this will vary from MySQL, Oracle, SQL, SQL databases. ये चेंजेस थोड़े वैरी करते हैं, कहीं वो इन्वर्टेड कोटेशन लेता है सिंगल, कहीं डबल लेता है. हाँ, जहां पे भी स्ट्रिंग वैल्यूज है हमेशा आपको कोटेशंस तो देना है, सिंगल बोलो डबल बोलो, बट नंबर्स के लिए वैरी करता है. कोई टूल में नंबर्स के लिए कोटेशंस लेता है, कोई टूल में नहीं लेता है. ठीक है, नाउ लेट्स डू इट मल्टीपल. सो मैंने 2 किया इसको, एंड देन लेट्स से वी हैव द नेम एज, ठीक है, लेट्स पुट द रैंडम नेम्स. John, then John surname is maybe Mitchell, something like that, and we are adding some data here. ठीक है, इसी को चेंज कर देते हैं 1 3 5 6 7 8 9. Okay, and the ID we are giving him is city ID is like 203, something like that. Okay, and let's change this also. इसी को हम लोग replace कर सकते हैं. This 3 and the name is maybe Roy. Okay, why there's an error here? Okay, Clevin is the surname. The phone number is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, and the ID which we are giving him is, let's say 10107. ठीक है, ये 3 एंट्रीज होगी. आई एम अगेन डूइंग अ कॉपी पेस्ट and I'm adding the same data here, and we can change the data. So if I come here and if the ID is, let's say 6, the name of the person is Jelly, the surname is Mike, and the numbers we are changing is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, and the code, let's say, is 105. Okay, now let's execute all of them together and let's see whether we get successful or not. Can you see 3 rows affected? Okay, so you can do multiple insert, but you cannot create multiple things at a time. Okay, now this multiple insert remains same with any tool you are using. It should give you the access to design multiple, because अगर ऐसा नहीं हुआ तो just think database developers जो है they'll just doing insertion, उनको weeks सिर्फ time लगेगा data insert करने के लिए. Okay, समझा? क्लियर क्लियर एवरीबॉडी? अभी आज ये असाइनमेंट अगर मैं फिर से अपलोड करूँ सबको करते आएगा. 2 टेबल क्रिएट करना, उनके बीच में प्राइमरी की फॉरेन की डालना और डेटा इंसर्ट करना. ठीक है, अभी डेटा इंसर्ट करने के बाद में आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस. वो क्वेश्चंस के थ्रू आपको डेटा रिट्राइव भी करते आना चाहिए. जो आपने डेटाबेस में लोड किया है ना, स्टोरेज जो किया है उस पे आप काम कर रहे हो, जो आप काम कर रहे हो उसको बोलते हैं मैनिपुलेशन, और रिट्राइविंग मींस आप क्वेरी फायर करके डेटा बाहर निकाल रहे हो. ठीक है, नाउ ये हमारा इंसर्ट हो गया. किसके लिए? This is for employees detail. Now let's do the insertion for cities. So I'll copy this cities and I'll just do a double click here, paste कर दिया. Same thing, I'm going here, I'm putting it here and same. तो अभी हमें एक चीज क्या ध्यान रखना पड़ेगा ना, हमारे पास ऐसे 1-2 आईडी होना चाहिए जो कि कॉमन है दोनों टेबल्स में, सिटीज में,
ताकि आप डेटा रिट्राइव कर सको. ओके, मल्टीपल सिटीज कॉपी पेस्टेड. Okay, so no, let's not take it from there. And here, now what do we have under cities? So we have okay, let me write it. We have, ये कंफ्यूज हो रहा है क्या देखने में? What I can do is मैं थोड़ा इसको हटा देती हूँ यहाँ से. Okay, so we will be having a city underscore ID. We can take it from the drop down. Then we have EMP underscore ID. Again, we can pick it from the drop down. Then we have the city underscore name. Good practice would be take it from a drop down because spelling mistakes ये सब चीजें हो सकता है, and then again we spend our time to find out कि क्या गलती हुआ है. So then this is one good thing कि आप ले लो. Most of the tool you get this feature to select it from the highlighter as a drop downer, but then there are few tools जो नहीं देता है, so आपको बहुत carefully वो सब data insert करते वक्त ध्यान रखना पड़ता है. ठीक है. So again I'm keeping the ID here as 6. And let's say if the employee ID is maybe, let's give it a 2-digit number, 01. Name of the employee is not required. Name of the city is, for example, we are making it as Pune, and zip code is like 5-digit number, 1 2 3 4 5. Okay, so let's do a multiple entries for this. So we have 4 employees, so we'll do 4 entries, 2 3 and 4. Okay, so now I'm repeating one more city ID here. That will be okay. So city ID, what do we have? We have 101. So I'm just putting it 101, and one more I'm repeating it, that is 204. This 2 city IDs I'm repeating. Then the employee IDs, again just make it 1 and just make it the exact employee 2. I mean basically we're trying to show that they have a relation between them. So Pune, we don't have a city name. This can be Mumbai, and zip code we will change it maybe, let's say, by 45. Okay, then next city ID you have is 107. We'll make it 108, and here you have 105. So we'll make it, let's say, 10 or maybe 1110. Anything, any value is okay. Okay, now this is done. Then we have the employee ID. We have 3, so we'll make it like 5, and here we have 6. So let's make it like maybe 10. So the city name can be, let's say, Nagpur, and then here we can have maybe Chennai. Okay, so the codes remains maybe 011, and here let's change it to 411 and 45, and let's execute all of them for cities table. Why it will go into cities? Because the syntax is saying insert into cities where I have these columns and these are my data values for that. So now you always have to follow the sequence, even if you're skipping this step. अगर आपने ये step skip कर दिया ना, तो भी क्या होना चाहिए, आपने जो sequence है वो miss नहीं करना चाहिए, because the tool is very smart to understand the sequence. अगर आपने sequence गड़बड़ किया, expect you will start getting warnings, you'll start getting error messages, right? Okay, so just for best practice, initial level पे practice कैसे करो, columns names वहीं पे रखो and then adding it. Once you have a grip of the tool, then even if you're skipping the column names, that is okay. Okay, let's execute this. Okay, what it is saying, the insert statement conflicts with the foreign key constraint. The conflicts occur in database table employee column ID. Okay, so you cannot have multiple. Same thing here also. Okay, the insert statement conflicted with the foreign key FK city ID. The conflicts occur in database employee city column ID पे conflict दिखा रहा है वो. Okay, ठीक है. तो अभी क्या करते हैं इसमें, फॉर एग्जाम्पल इसका ये ड्रॉप कर देते हैं या फिर रिमूव करते हैं. ओके, लेट्स वर्क विथ वन ऑफ देम. एक एक इंसर्ट करते हैं बिकॉज इसमें फॉरेन की कंस्ट्रेंट है ना, एंड देन जस्ट रिमूव इट. इंसर्ट स्टेटमेंट विद द फॉरेन की एफके सिटी आईडी. सो यहाँ पे उन्होंने सिटी आईडी को एफके दिया है. ठीक है, तो वो ऑकर कर रहा है एम्प्लॉय सिटी में. आइडियली इट शुड नॉट हैपन अगेन. On which column? On employee ID column. So ultimately हमने employee ID column दो values तो same दे के ही रखा है. Okay, let me execute both of them together. So let's execute. Do we have a cities? Okay, ये cities को ही invalid दिखा रहा है. Let's go and refresh it once again.
Who have done in parallel with me? ये error आ रहा है आपको या it is okay for you? किसने I किया मेरे tried to साथ? insert one row, तो but वो that was okay for me. हाँ, तो वो एरर दिखा रहा है इधर, वो मल्टीपल नहीं ले रहा है वो। ठीक है, एक करके देखते हैं। हाँ, मेरे पास तो एक भी नहीं हो रहा है, ये ना ट्रायल वर्जन्स की थोड़ा यही पंगा होता है। ठीक है, लेट्स इसको ओमिट करते हैं। एवरीथिंग इज करेक्ट, ओनली द टूल इज नॉट टेकिंग इट। फॉरेन की पे एरर ही मार रहा है वो। Insert statement conflicts with the foreign key constraint FK city city ID. FK city city ID. The conflict occurred in database employed cities. होना ही नहीं चाहिए conflict. ठीक है, तुम्हारा एक ले लिया क्या? एक एक करेगा तो लेना चाहिए उसने, एक तो लेना ही चाहिए। मेरा एक रो हो गया है इंसर्ट, हाँ, उसके अभी बाद वैसे नहीं ही चल रहा है। वैसे नहीं, सेकंड लेगा वो, एक लेगा सेकंड भी लेगा, वैसे ही एंटर करो सेकंड कॉलम सेकंड डेटा। अभी सेम एरर आ रहा है मुझे। अभी सेम एरर आ रहा, नहीं आना चाहिए हमारे वर्जन्स। हाँ, एनीबडी एल्स हु इज डूइंग पैरेलली प्लीज साथ में किया करो कल से। अभी ऐसा आइडल बैठोगे ना तो फिर कैसे यूज नहीं होगा आपको, है ना? एवरीबडी एल्स हु इज देयर एट द मीटिंग। सुहास, यू आर नॉट डूइंग टुडे? सेटअप रेडी है ना आपका? हाँ रेडी है, कर रहा हूँ। मुझे भी एरर आ रहा है, वो सेम एरर आपको अरे भी आ आना रहा है। नहीं चाहिए यार, ये क्या ट्रायल वर्जन्स के थोड़ा पंगा ही होता है। हाँ, चलो नहीं, कल से करना है। शरयू, व्हाट अबाउट यू? हाँ बोलो शरयू। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए ओपन नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पा रहा है? अच्छा ठीक है, मुझे बताना क्या इशू है ना? बट पैरेलली करोगे ना थोड़ा के सबको इंटरेस्टिंग लगेगा, अदरवाइज थोड़ा इशू हो जाएगा नहीं तो फिर। ठीक है, तो देखो जैसे कैसे एरर मैसेजेस सर्च करते हैं ना, बस इसको कॉपी पेस्ट कर लो। अभी गूगल को ही तो समझेगा नहीं ना कि सिटी आईडी क्या है और एम्प्लॉय सिटी क्या है, क्योंकि ये हमने टेबल क्रिएट किए। हमें सिर्फ इतना जानना है कि वो इंसर्ट में कंस्ट्रेंट क्यों दिखा रहा है, तो मैंने इतना ही कॉपी पेस्ट किया यहाँ पे। एंड लेट्स गो एंड रीड सम ऑफ द forums की व्हाट इशू दे हैव। In your table, this has a foreign key reference on our table. The way a F key works, it cannot have a value in the column that is not in the primary key. ओके, तो ये बोल रहा है कि वैल्यू वो देगा ही नहीं क्योंकि फॉरेन की क्रिएट किया हुआ है। फॉरेन की फील्ड, ठीक है। ओके, क्रिएट टेबल हो गया। ओके, तो ये ऐसे बोल रहे हैं कि ट्रायल वर्जन्स पे हम लोगों ने प्राइमरी की क्रिएट किया है, दैट इज ओके, बट हमने फॉरेन की साथ में क्रिएट कर दिया, सो इट शुड हैव द कॉमन डेटा। यूजुअली इट शुड प्रेजेंट यू द कॉमन डेटा। तो ठीक है, एक कॉमन डेटा दोनों जगह सेम जो है वो डाल के देखते हैं कि वर्क करता है क्या। अदरवाइज नेक्स्ट ऑप्शन क्या रहेगा, हमको वो फॉरेन की का टेबल ड्रॉप करना पड़ेगा, सिटीज का टेबल रिक्रिएट करना पड़ेगा, डेटा इंसर्ट करने के बाद में फिर उस पर कंस्ट्रेंट डालेंगे हम लोग कि सिटीज टेबल में ये जो हमारा सिटी आईडी है वो फॉरेन की एज एक्ट कर रहा है। सो दैट इज द वे अराउंड, उसके थ्रू तो वो डेफिनेटली हो जाएगा। बट ठीक है, एक डेटा इंसर्ट करते हैं, पहले इन दोनों में देख लेते हैं कि डेटा क्या क्या आया है हमारे पास। सो ठीक है, हमारे पास है ये डेटा एम्प्लॉयज डिटेल का, सिटी में तो डेटा है ही नहीं। सो इंसर्ट इनटू सिटीज, सो लेट्स से सिटी आईडी 101 है, देन वी हैव एम्प्लॉय आईडी, तो इसमें 1 है, पुणे, एंड दिस इज द डेटा।
तो इसने इसको तो इंसर्ट करना ही चाहिए, अगर नहीं किया तो वो फॉरेन की ड्रॉप करना पड़ेगा हमें। ठीक है, सेम चीज हो रहा है। सो व्हाट वी कैन ड्रॉ इज इस टेबल को ड्रॉप करने से अच्छा हमारे पास एक और कमांड है जिसके थ्रू हम टेबल में का क्या कर सकते हैं, टेबल में का सिर्फ वो फॉरेन की कंस्ट्रेंट ड्रॉप कर सकते हैं। सो द कमांड इज नोन एज ऑल्टर कमांड। ठीक है, तो वी कैन डू इट विद बोथ द वेज। तो अभी फॉरेन की को ऑल्टर करते हैं। ओके, 1 सेकेंड। हाँ, अभी देखो दो चीजें आप कर सकते हो, एक तो आप पूरा टेबल को ड्रॉप कर दो, दैट इज वन वे, और उसके उसमें का वापस टेबल क्रिएट करो, फॉरेन की मत डालो, इंसर्ट करने के बाद फॉरेन की डालो। या अदर वे क्या हो सकता है, आपने जो टेबल बनाया है विच हैज द फॉरेन की, उस टेबल को आप सिर्फ ऑल्टर करो। सो ऑल्टर टेबल मींस क्या होता है, जैसे एक नॉर्मल वर्ड है ना, इन नॉर्मल इंग्लिश वर्ड, ऑल्टर मींस यू कैन मेक चेंजेस टू द टेबल। अब ऑल्टर करने के मल्टीपल तरीके हैं, दिस इज अगेन लाइक एडवांस सीक्वल का ही टाइप हो गया एक है। तो इफ आई राइट वन मोर सिंटैक्स हियर, ऑल्टर टेबल टेबल नेम, इसका सिंटैक्स वैसे ही है, ऑल्टर टेबल, और क्या टेबल ऑल्टर करना है उसका नाम। सो नाउ यू कैन डू ऑल्टर इन मल्टीपल चीजें। सपोज अगर आपके पास एक टेबल है एम्प्लॉइज टेबल, आपको उसमें और कॉलम्स ऐड करने हैं, तो हर बार हम टेबल तो ड्रॉप नहीं करेंगे, टेबल ड्रॉप कर रहे हैं, कॉलम ऐड कर रहे हैं, फिर क्रिएट कर रहे हैं, नो। सो देयर इज अ सिंटैक्स व्हिच इज रेडीली अवेलेबल जिसका नाम है ऑल्टर। तो आप विद द सिंटैक्स ऑल्टर टेबल टेबल नेम, आप टेबल में डेटा ऐड कर सकते हो, दैट इज यू कैन ऐड अ कॉलम। आप टेबल में डेटा मॉडिफाई कर सकते हो अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं। ओके, एंड देन नेक्स्ट चीज आप डिलीट कर सकते हो ऑल्टर के साथ में, आप ड्रॉप कर सकते हो ऑल्टर के साथ में। तो क्या हो रहा है, आप पूरा टेबल डिलीट नहीं कर रहे हो, उस पर्टिकुलर कॉलम में आप चेंजेस कर रहे हो, आप कॉलम ऐड कर रहे हो, कॉलम रिमूव कर रहे हो, कॉलम डिलीट कर रहे हो। सो विदाउट डिस्टर्बिंग द एंटायर टेबल एंड इट्स स्ट्रक्चर एंड द वैल्यूज, यू आर वर्किंग विद अ स्पेसिफिक कॉलम जहां पे आपको ऑल्टर काम करेगा। सो ऐड हो गया, मॉडिफाई हो गया, डिलीट हो गया, ड्रॉप हो गया। हाँ, this is what the main functions the alter table will help you to do। तो ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, हाँ, cities के नीचे ही एक alter item देके रखते हैं, and then see if this works। so Ma'am? as I say, हाँ बोलो। एक्चुअली फॉरेन की अगर हमें किसी टेबल में करना है तो इज दैट नेसेसरी दैट फॉरेन की शुड बी प्राइमरी की इन सम अदर टेबल? एग्जैक्टली वो तो होना ही है, वो तो ही। हाँ, तो एक्चुअली फिर हमने यहाँ पे फॉरेन की सिटी आईडी को दिया है और एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की है। ओ इतना बड़ा गलती हो गया कि मैं, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ वही इशू है, गॉट इट, थैंक यू। पंचश्वेता बोले क्या, अच्छा, वो गड़बड़ में ही हो गया। हाँ करेक्ट Yes. करेक्ट, यही इशू हो रहा है, राइट, दैट इज वन इशू। हमने यहाँ पे प्राइमरी की इसको दिया, सिटी को सिटी लिंक किया। ठीक है, तो फिर ठीक है ना, हम इसको ऑल्टर का भी जरूरत नहीं है, फिर तो टेबल ही ड्रॉप करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, इसलिए वो कंस्ट्रेन आ रहा है ना। ठीक है, पहले एक ऑल्टर करने से चेक करते हैं। ऑल्टर टेबल, हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? मैम इसमें जो सिटी आईडी है उसमें अपना नहीं, आपका आवाज बहुत लो आ रहा है, थोड़ा माइक के पास आके बात करो। हेलो, हाँ बोलो। हाँ जो टेबल क्रिएट किया है उसमें अपन चेंजेस कर सकते हैं क्या मैम? हाँ वही कर रही हूँ मैं, तो ये ड्रॉप नहीं करती हूँ, हमने जो एम्प्लॉय डिटेल्स वाला चेंज किया है ना, मैं वहां पे प्राइमरी की कंस्ट्रेंट चेंज कर देती हूँ। सो ऑल्टर टेबल, एक सेकेंड ना, ऑल्टर टेबल टेबल नेम, कौन से टेबल पे हमको करना है, एम्प्लॉयज डिटेल पे। सो ठीक है, अभी हम लोग किस पे करना है हमको, एम्प्लॉय, अच्छा उसमें सिटी पे किया है ना, तो ऐड कंस्ट्रेंट्स ठीक है, प्राइमरी की, ये इसको एफ के पी के भी चलेगा, पी के अंडरस्कोर सिटी अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, तो ये एक ऑल्टर हो जाएगा हमारा। लेट्स एग्जीक्यूट दिस। कैन नॉट फाइंड डेटा टाइप पी के आईडी, अब इसको मिल क्यों नहीं रहा है। ठीक है, पूरा नाम देके देखते हैं यहाँ पे, या फिर ड्रॉप करना तो हमेशा एक ऑप्शन है ही। कंस्ट्रेंट्स का, ओके, व्हाट इज द एरर हियर, द डेफिनेशन फॉर कॉलम मस्ट इंक्लूड अ डेटा टाइप। ओके, तो उसको यहाँ पे डेटा टाइप चाहिए। सो सिटी कैन बी द आईडी,
The definition of column must include data type. Data type तो हम दे ही रहे हैं उसको. City ID का data type is ID. अब क्यों नहीं ले रहा है ये? The definition of column constraints must include a data type. So we already giving a data type. Data type That is integer, no? okay, integer. Sorry. Okay, now let's see. भी क्या error है? The definition for column constraint must include a data type. So we already are giving a data type. ठीक है. क्यों नहीं ले रहा है data type अभी? ओके लेट्स डू इट दिस वे. ऐसा कुछ करते हैं, डायरेक्टली प्राइमरी की लिखते हैं कंस्ट्रेंट के बजाय और इसको ब्रैकेट में डालते हैं. सिटी आईडी को प्राइमरी की लेना है. लेट्स से अगर ऐसा लेते हैं तो एक टेबल में 2 प्राइमरी की होते हैं क्या? नहीं, पहले नहीं, वो हटाऊंगी ना मैं. पहले इसको मैं ऑल्टर कर रही हूँ, फिर ये वाला रिमूव कर दूंगी, ड्रॉप कर दूंगी उसको. सो इट इज सेइंग ऑलरेडी हैव अ प्राइमरी की. अच्छा वो वही बोल रहा है, दोनों एक साथ में दे ही नहीं सकते. माई सीक्वल में क्या होता है, अगर आपने एक को पहले ऐड किया, दूसरे को वो खुद ब खुद आपको सिंटैक्स दे देगा ड्रॉप करने का. कुड नॉट क्रिएट कंटेक्स्ट और इंडेक्स. ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ऑल्टर में ड्रॉप कर देते हैं पहले. ठीक है, ड्रॉप constraint pk underscore your employee id. is not a constraint, could not drop constraint. It's a constraint. ठीक है, वो syntax is correct but it is not dropping. अभी alter table name and drop constraint. ठीक है, followed with a semicolon भी दे देते हैं. ओके तो वो ड्रॉप नहीं कर रहा है, ना ड्रॉप कर रहा है ना क्रिएट कर रहा है. ठीक है, वन लास्ट ट्राई, अदरवाइज वी विल ड्रॉप द टेबल. ओके ठीक है, इट इज नॉट टेकिंग एनी ऑफ दिस. सो व्हाट वी कैन डू इज इस टेबल को ड्रॉप करते हैं एंड देन विल क्रिएट इट. Cannot drop because it does not consist, you have permissions. One second, I'll just check if I can get the permission for myself. सबको ऐसे आ रहा है क्या? आप लोग ड्रॉप कर पा रहे हो टेबल, या वो दिखाता है परमिशन नहीं है?
ओके तो मैं अभी क्या चेक कर रही हूँ, मैं जस्ट देख रही हूँ कि अगर मुझे वो एडमिन के एक्सेस चाहिए तो व्हाट पासवर्ड विल आई नीड सो दैट ये डायरेक्टली टेबल ड्रॉप हो सके। सो इसमें ऐसे डॉक्यूमेंट में कोई ऐसे डिफॉल्ट पासवर्ड तो नहीं दिख रहा है, जो है वहां पे ऑलरेडी ब्लॉक्ड है इन द इमेजेस। हाँ, तो जो मेरे साथ पैरेलली कर रहे हैं उनको भी ये कंस्ट्रेंट हो रहा है क्या? ड्रॉप करने में इशू दिखाता है क्या? परमिशंस नहीं है ऐसा? बस तुम और श्वेता कर रहे हो ना? हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो, यस मैम। हाँ, तो शरीर तुम्हें आ रहा है कि वो ड्रॉप करने के लिए इशू? क्योंकि हम लोगों को ना फिर वो एडमिन राइट्स लाने पड़ेंगे जहां से वो इशू नहीं आएगा। कि तुम ड्रॉप कर पा रहे हो? नहीं मैम, मेरा थोड़ा एसक्यूएल में प्रॉब्लम हो रहा था, मैंने नहीं किया है अभी। अच्छा, सुहास तुम्हें आ रहा है वो परमिशन राइट कि एडमिन नहीं है तो ड्रॉप नहीं कर पाओगे? हाँ मुझे भी सेम आया। एडमिन नहीं है क्या? हाँ क्योंकि ये एडमिन नहीं है। डॉक्यूमेंट एडमिन नहीं है क्या? अच्छा अच्छा, बिकॉज एडमिन राइट्स रहेगा ना, हम इमीडिएटली उसको ड्रॉप कर पाएंगे। या हाँ फिर सेटिंग में से तो कुछ ऑप्शन नहीं दिखा रहा है वो। मैम यस्टरडे तो आपने ड्रॉप किया था ना एक हाँ ना, अरे ये थोड़ा ट्रायल वर्जन में थोड़ा बहुत कभी कभी हो जाता है इशू। पावर बीआई में भी कमी ऐसा होता है, बट आइडियली ड्रॉप तो करना आना ही चाहिए। और चलो ड्रॉप तो एक नेक्स्ट स्टेप है। यहाँ पे जब हम लोग अल्टर का स्टेटमेंट लिख रहे हैं ना, ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट है, तो इससे क्या होता है, ये आपका पीके की ये पूरा की ड्रॉप हो जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप हमको क्या करना है, हमको ये अल्टर से हम लोग ये ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, फिर अल्टर करके जो मैंने नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखा था, ये ड्रॉप करने के बाद में हमने सिटी को प्राइमरी की कर देंगे। सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप पे हम लोग क्या करेंगे, वापस ऑल्टर पे ऐड लिख के सेम एम्प्लॉय आईडी को यही कंडीशन डाल के हम इसको यहाँ पे प्राइमरी की बना देंगे। तो ये तीन स्टेप में क्या हो जाएगा, देखो ये भी सिंटैक्स करेक्ट ले रहा है वो। तो तीन स्टेप में क्या होगा, पहले आप इसको ड्रॉप करोगे, फिर इसको प्राइमरी की बनाओगे, ठीक है। आपको जो भी इसको बनाना है, इसको बनाना है। तो पहले तो हमको इसको ड्रॉप करना है, इसको आपने ड्रॉप कर दिया, बाद में आपने क्या किया, इसको इसको इसका भी प्राइमरी की हटा दिया और इसको प्राइमरी की दे दिया। तो वो सिर्फ आपके ऑल्टरेशन से ऐड और ड्रॉप पे वर्क हो जाना चाहिए। तो आई डोंट नो, एडमिन राइट्स के तो हो ही नहीं रहा है।
ठीक है, सो फॉर नाउ अभी क्या करते हैं, इस कंप्लीट टेबल को ड्रॉप करने के बजाय, बिकॉज राइट्स नहीं है, ये ऑल्टर स्टेटमेंट एज इट इज रखते हैं, एक नया टेबल क्रिएट करते हैं. Ma'am, please will you try deleting first city table and then employee table? पहला सिटी टेबल हाँ, क्योंकि कल तो ड्रॉप हुआ था, तो जस्ट होना बाद में हमने चाहिए. वो यूज किया है ना, बाद में क्रिएट किया है ना ऑर्डर टेबल. नहीं, आइडियली ऐसा सीक्वेंशियल कुछ नहीं होता है, क्योंकि सोचो ना, आप डेटाबेसेस में अगर सीक्वेंशियली कुछ नहीं होता है, आप कभी भी कुछ भी ड्रॉप कर सकते हो. तो मैं कभी एक शॉर्टकट लेती हूँ, इसको एज इस यहाँ पे रखते हैं हम लोग, ये इंसर्ट स्टेटमेंट में रहने दो. हाँ, एक तरीका शायद हो सकता है कि अगर प्राइमरी की लिंक्ड है तो हम सीक्वेंशियली ड्रॉप करेंगे तो भी हो सकता है मे बी. तो उसको पहले ड्रॉप करूँ क्या? लेट्स सी, देखते हैं सिटीज वाला ड्रॉप होता है क्या. हाँ, बट देखो ना श्वेता, अभी तो मैं ड्रॉप कर ही नहीं सकती क्योंकि परमिशन का इश्यू है. बट हाँ, एक पॉइंट वी कैन टेक इट फॉरवर्ड, अगर जब प्राइमरी की लिंक है दो टेबल्स में तो सीक्वेंशियली ड्रॉप किया तो हो जाना चाहिए. बट अभी तो वो एडमिन वाला राइट्स ही नहीं दे रहा है. तो अभी क्या करते हैं, ड्रॉप करने के अलावा इसको मैं क्रिएट करती हूँ एक जगह. तो अभी यहाँ पे ड्रॉप ही नहीं है ना, डायरेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा. ठीक है, इसको नॉट नल कंस्ट्रेंट दे ही देते हैं. ठीक है, एक सेकंड नहीं दिया तो वो एरर मार रहा है. ठीक है, ठीक है, तो सिटी आईडी हमारा हो गया प्राइमरी की, और एक बार सिटीज का टेबल देख लेते हैं. ओके, ठीक है, लेट्स क्रिएट दिस. सिलेक्ट चला लेते दोनों का. The object is invalid. ऐसे तो नहीं होना चाहिए. इन सेकेंड. ठीक है, यहाँ पे बन गया ये. अच्छा, हमने वो इंसर्ट को ओवरराइट कर दिया था ना, जो इंसर्ट इसमें गए थे ना वही इंसर्ट इसमें जाना चाहिए अभी. ठीक है, फिलहाल मैं ये इंसर्ट सिटीज में डाल के देखती हूँ ये लेता है क्या. The insert statement conflicts with the foreign key. ठीक है, वापस ऐसे ही हो रहा है ये. The conflict occur in database employee table.
अभी हमने क्या किया है, एक और नया टेबल क्रिएट किया है ना, तो उसमें वापस से रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करना पड़ेगा. दैट इज वन थिंग रिमेनिंग. Okay, so this is created, this is already there. मैम ऐसा नहीं हो सकता क्या कि हम और एक टेबल क्रिएट करें और उसमें एम्प्लॉय आईडी को एज अ फॉरेन की रखें? एम्प्लॉय आईडी को हाँ वैसे भी चलेगा, बट आइडियली ये भी वर्क करना ही चाहिए. हम वही चीज रिपीट कर रहे हैं ना. देखो श्वेता बोल रहे हो ना, हम वही चीज रिपीट कर रहे हैं. यहाँ पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा प्राइमरी की सिटी ही है और इसको हम यहाँ पे रेफरेंस कर रहे हैं फॉरेन की. ठीक है, वो सिर्फ इंसर्ट में इशू दिखा रहा है, तो मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है. ये टूल के मैम ऊपर वो की रेफरेंसेस एम्प्लॉय डिटेल्स की जगह पे एम्प्लॉय डीटी होना चाहिए ना अभी. अरे यार ये भी छोटे छोटे स्पेलिंग मिस्टेक. ठीक है, इसको डीटी करते हैं. अब ये क्रिएट सिटीज के लिए भी सिटी डीटी करते हैं ताकि दोनों सेम दिखने लगे. ठीक है, इस पे क्या दिखा रहा है, फॉरेन की रेफरेंस इनवैलिड डीटी. एम्प्लॉय का स्पेलिंग तो करेक्ट है. देखो इसका प्राइमरी की यहाँ पे बन गया. ठीक है, वो सिटी को हमने यहाँ पे लेके आ गए, इसको फॉरेन की रेफरेंस किया. अभी इसका एरर क्या है कि वो दिखा रहा है फॉरेन की एफ के सिटी डेट रेफरेंसेस इनवैलिड डीटी. ये टेबल क्रिएट हुआ है ना डीटी के नाम से, एक बार पर इस पे सिलेक्ट चला के देखते हैं. डेटा तो है वहां पे, ऐसे कॉलम्स तो दिख रहे हैं. ये टेबल पे एरर मार रहा है, इनवैलिड ऑब्जेक्ट डीटी. बट सी यू कैन सी द डेटा योर लेफ्ट साइड में दिख रहा है, यहाँ पे कॉलम्स भी दिख रहे हैं. अब वो टेबल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे. ये ना एडमिन राइट से लॉगिन करना पड़ेगा मुझे, अदरवाइज हम लोग नहीं देख पाएंगे इसको आगे. अभी देखो लेफ्ट साइड में डेटा दिख रहा है आपको, टेबल भी क्रिएटेड है, उसके कॉलम्स भी है, बट अगर इसको एग्जीक्यूट करना है तो वो दिखा रहा है इनवैलिड ऑब्जेक्ट. ओके, तो ये सिलेक्ट तो ठीक है, छोड़ो. बट अगर इसको रेफरेंस, जैसे इसने बोला हमने चेंज कर दिया, अभी रेफरेंस का हो रहा है इस टेबल में, तो ये रेफरेंस जब तक नहीं देगा उस टेबल का, हम ये टेबल का डिडायरेक्शन नहीं कर पाएंगे. और ये डिडायरेक्शन होने के बाद में फिर आपको इंसर्ट ही करना है. सो ये आई थिंक वापस परमिशन का ही इशू कुछ है. ठीक है, एक बार देखते हैं सेटिंग्स में अगर कुछ दे सकते हैं तो. Road interview connection, timeout, product name. Okay, there is nothing under security. Predicts में भी कुछ नहीं है. सिटी डेटाबेस तो सब सही दिखा रहा है, सिर्फ परमिशंस का इशू हो रहा है. You don't have permissions. ओके, तो ठीक है, व्हाट वी कैन डू इज, मैं ना ये ट्राई करती हूँ वापस से एक बार चेक करने का किसको एडमिन राइट्स के कैसे परमिशन दे सकते हैं. तो मुझे अगर वो वे आउट मिल जाना चाहिए. तो ये सबको हो रहा है प्रॉब्लम ड्रॉप का, किसी मुझे ही है, किस किस को हो रहा है, ड्रॉप नहीं कर पा रहा है. तो फिर मैं वो डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड करती हूँ. सुभाष तुम्हें भी ड्रॉप नहीं कर, तो क्या एरर ये मेरे जैसी है क्या कि हाँ एडमिन हाँ राइट्स वैसा ही है, वैसा ही ऐसा ही है क्या?
अच्छा, मतलब वो सबके ट्रायल वर्जन्स में हो रहे हैं। ठीक है, मैं एक बार देखती हूँ कि इसको हम लोग एडमिन के थ्रू कर सकते हैं क्या, ऐसे कुछ शॉर्टकट होगा तो। मैं मेरा जो ये तो मेरा पर्सनल लैपटॉप है, मैं मेरे ऑफिस के लैपटॉप्स पे वहाँ पे देखती हूँ कि उसमें क्या सेटिंग होता है, या फिर आई आज द एडमिन, मेरा ऑफिस के एडमिन को ही पूछती हूँ कि अगर ये ट्रायल वर्जन्स में एडमिन का एक्सेस नहीं है, सो हाउ वी कैन गेट इट। ठीक है, तो आई थिंक वो होने के बाद ये इतना इशू नहीं आना चाहिए, क्योंकि अभी तो क्या हो गया, देखो हमने ये टेबल भी बना लिया। ठीक है, ये टेबल बनाने के बाद में हमने ये, अगर ये वाला एग्जीक्यूट हो जाता है तो इसका प्राइमरी की और फॉरेन की रेफरेंस हो जाता है। ठीक है, वो भी हो जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, इंसर्ट तो हमने ऊपर वाले में इंसर्ट कर ही दिया था एम्प्लॉइज डिटेल में, बट जस्ट बिकॉज द टेबल इज चेंज तो आपको सेम इंसर्ट यहाँ पे करना पड़ेगा, वो आपका थर्ड स्टेप होगा। फोर्थ स्टेप क्या होगा, आपके सिटीज में ये ऑलरेडी इंसर्ट नीचे चल रहे हैं, इन सिटीज को इंसर्ट करना है। वंस दिस इज डन तो क्या हो जाएगा, आपका ये रिलेशनशिप पूरा सेट हो गया। कहा गया वो टेबल, सो ये रिलेशनशिप आपको पूरा सेट हो गया। आपको फिर कार्डिनलिटी का भी ध्यान नहीं रखना है, बाद में आपको सिर्फ एक ही चीज करना है। देयर विल बी एक छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे कि गेट द एम्प्लॉय आईडी वेयर द सिटी नेम इज इक्वल टू दिस, तो उसमें फिर ऐसे मल्टीपल कंडीशंस होते हैं, जैसे और क्लॉजेस है, जैसे वेयर एक होता है, हैविंग तो एक्चुअली सिलेबस में नहीं है बट स्टिल वी कैन सी, हैविंग क्लॉज हो गया, एक हो गया आपका ऑर्डर बाय, एंड देन हो गया आपका, ठीक है, ये तीन। तो इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर ऐसा सिनेरियो है, यू वांट टू गेट द सिटी नेम वेयर द एम्प्लॉय इज इक्वल टू 101, तो ये मेरा 101 हो गया। तो यहाँ पे कंडीशंस ऐसे आएंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, आई राइट द स्टेटमेंट हियर, सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू, मेरे टेबल्स ड्रॉप हो गए। हो गए क्या? नहीं हाँ। यार, वो एडमिन का किया हुआ बेटर ही है। पूरे ड्रॉप हो गए क्या? हाँ, मतलब एक्चुअली मैं एम्प्लॉयज पहले कर रही थी तो मुझे एरर आ रहा था कि फॉरेन की कंस्ट्रेंट का, तुमने शायद वो तो फिर सीक्वेंस, मैंने पहले सिटीज ड्रॉप किया, तो हाँ। सिटी ड्रॉप हो गया, उसके बाद एम्प्लॉय ड्रॉप किया तो हो गया। अच्छा, मतलब वो सीक्वेंशियली फॉलो किया ना? अच्छा, हाँ। ठीक है। वो भी एक तरीका है, बट आइडियली तो देखते हैं। ठीक है, मैं भी वैसे ड्रॉप, मुझे एक्चुअली एडमिन का नहीं आया था ना एरर, मुझे फॉरेन की का आया था। हाँ सिर्फ तो फॉरेन फिर की का है मैंने, ना, तो हाँ वो सेकंड तरीका है। एक्चुअली सीक्वेंशियली का ऐसा कुछ होता नहीं, हम लोग ड्रॉप तो आइडियली हम लोग एंटरप्राइज में डेली यूज करते हैं, तो ऐसा होता नहीं है। बट देन ठीक है, एडमिन इज मेन। हाँ, तो यहाँ पे मेरा सिनेरियो क्या था, मुझे ऐसे एम्प्लॉय आईडी चाहिए, मैं ऐसे एकदम ना क्वेश्चंस देने वाली हूँ आज, इसलिए मैं बता रही हूँ। मुझे ऐसे एम्प्लॉय आईडी का सिटी चाहिए जिसका एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल 101 है, तो आई वॉन्ट द सिटी अंडरस्कोर नेम। ठीक है, तो हमारा सिंटैक्स कैसे होगा, सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम वेयर, ये हमारा एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल, वेयर कंडीशन, वेयर सिटी नेम इज इक्वल टू आपका जो भी सिटी नेम है, फॉर एग्जाम्पल सिटी नेम इज पुणे। ठीक है, तो हम लोग ऐसा डेटा यहाँ से निकाल सकते हैं, बट इसके अंदर ज्वाइन, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। सो दिस इज नॉट अ कंप्लीट क्वेरी। हमारा क्वेश्चन क्या है, हमें उस सिटी का नाम चाहिए जो कि एम्प्लॉय आईडी 101 है। सो व्हाट विल बी योर क्वेरी, सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी। अब यहाँ पे स्टार क्यों नहीं लिखा मैंने, स्टार इसलिए नहीं लिखा, मुझे बिकॉज मुझे सब कॉलम्स नहीं चाहिए उस टेबल के, मुझे उस टेबल का सिर्फ एक ही कॉलम चाहिए, और वो कहाँ से आ रहा है, एम्प्लॉय से। So select employee ID from employees table where city name is equal to Pune. But अब ये cities name पुणे कब आएगा, जब मेरे पास इन दोनों टेबल के बीच में लिंक होगा। अब इसमें लिंक तो है पर इसमें ज्वाइन नहीं है। So there are different types of joins जो हम लोग कल देखते हैं अभी, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन और एक फुल ज्वाइन होता है। तो अगर आपने यहाँ पे ज्वाइन कंडीशन लिख दिया ना, तो अभी इसमें ज्वाइन कंडीशन कैसे चलेगा, ये मुझे रिमूव करने दो। तो मैं ये क्वेश्चन देती नहीं हूँ ज्वाइन के आज, ठीक है। तो ओके 1 सेकेंड, ठीक है। तो अभी ये ज्वाइन लिख लिया आपने, इनर ज्वाइन फॉर एग्जांपल, इनर ज्वाइन, और फिर इन दोनों के बीच में आप ज्वाइन किस पे कर रहे हो, तो हमने वो देखा है आज, हम किस पे ज्वाइन कर रहे हैं, सिटी आईडी पे। तो सिटी आईडी इज इक्वल टू सिटी आईडी, ये आपका ज्वाइन का सिंटैक्स हो गया। बट सिटी आईडी किसका, तो ये आपको मेंशन करना पड़ेगा, एम्प्लॉइज का एम्प्लॉइज डॉट सिटी आईडी इज इक्वल टू सिटीज डॉट सिटी आईडी। तो बेसिकली हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे इन सिंटैक्स के अंदर, कि सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल इनर ज्वाइन। इन दोनों को कैसे कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग, कौन से ज्वाइन के बेसिस पे, इनर ज्वाइन के बेसिस पे। इट कैन बी राइट, इट कैन बी लेफ्ट, इट कैन बी फुल, चारों ज्वाइन के सिंटैक्स ऑलमोस्ट सेम है। और अब हमने इन दोनों को ज्वाइन तो कर दिया, बट ज्वाइनिंग की क्या है, देखो हर क्वेश्चन एक दूसरे से लिंक है। पहले सिलेक्ट करना है एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, और वी कैन ऑल्सो मेक इट, आई ऑल्सो वांट टू सिलेक्ट द सिटी नेम हियर, ठीक है। तो ये दोनों चीजें मुझे कहां से चाहिए, इन दोनों टेबल से चाहिए। तो मैंने कैसे दोनों को ज्वाइन किया, इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, ओके। अब इन दोनों को ज्वाइन करने का कंडीशन क्या है, एम्प्लॉय आईडी। तो ये मेरे दोनों एम्प्लॉयड आईडीज होंगे, बट अभी टूल को समझेगा नहीं कि दोनों भी सिटी आईडी है, तो कौन सा सिटी आईडी कहां से चल रहा है।
सो आपको एक्सप्लिसिटली वो मेंशन करना पड़ेगा कि सिटी आईडी ऑफ एम्प्लॉइज डॉट सिटी आईडी इज इक्वल टू सिटीज, कौन सा सिटीज टेबल का, मास्टर टेबल का डॉट सिटी आईडी। तो बेसिकली ये दोनों सिटी आईडी आपको कनेक्ट करेंगे ये डेटा लाने के लिए, सिटी का नेम लाने के लिए और एम्प्लॉय का नेम लाने के लिए। और वहां पे आप सिटी का नेम दे सकते हो, ऐसे एम्प्लॉयज मुझे चाहिए जो कि पुणे में फॉल कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ बेसिकली योर जॉइंट्स विल वर्क। ठीक है, तो अभी के लिए यहाँ पे मैंने जस्ट एक ब्रीफ दिया है, कल हम लोग वापस करते हैं और ये टेबल्स में वापस ड्रॉप करती हूँ। तो आज का असाइनमेंट क्या करते हैं ना, मैं वापस से अपलोड करती हूँ, सबको तो पता है कि कैसे क्रिएट करना है। क्रिएट करो टेबल, उसके अंदर फिर डेटा, 2 टेबल्स क्रिएट करो, डेटा इंसर्ट करो और फॉरेन की क्या करो ना, बाद में ऐड करो। पहले प्राइमरी की ऐड करके एक टेबल में इंसर्ट कर दो, फिर बाद में टेबल नंबर 2 क्रिएट करके उसमें डेटा इंसर्ट कर दो, फिर प्राइमरी की ऐड करो विद द हेल्प ऑफ ऑल्टर स्टेटमेंट, है ना। तो ठीक है, मैं क्या करती हूँ, स्टेप्स लिख के देती हूँ असाइनमेंट में, वैसे करके एटलीस्ट टेबल क्रिएट करके कल रेडी करो। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एटलीस्ट कल जॉइंट्स पे मूव कर सकते हैं। ओके, है ना। तो मैं पूरा स्टेप्स मेंशन कर देती हूँ और जैसे ही वो अपलोड होता है ना, मैं ग्रुप में एक बार मैसेज करती हूँ, मुझे एक बार बताना कि वो व्यू हो रहा है कि नहीं, बिकॉज सी असाइनमेंट रेडी है, आई डोंट नो वो अपलोड मुझे तो दिखा रहा है, व्हेन आई गो टू माय पोर्टल आई कैन सी द असाइनमेंट, बट पता नहीं उसमें वो यूजर्स को क्यों नहीं हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, उस असाइनमेंट को रादर गिविंग इट लाइक एकदम शॉर्टकट में मैं स्टेप्स मेंटेन करके रखती हूँ, सो दैट टुमारो व्हेन वी स्टार्ट हम लोग डायरेक्टली जॉइंट्स पे ही जंप करते हैं फिर, है ना। यहाँ तक तो सबको क्लियर है ना कि कैसे अभी तक चल रहा है। ठीक है, ओके, हाँ ठीक है, ओके देन, थैंक यू। कल मिलते हैं फिर मॉर्निंग 7:30।